حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج جمعہ میں زکوٰۃ سے متعلق میں نے کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ کچھ مسائل، کچھ فضائل اور کچھ اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی میں نے جرأت کی۔ ابھی بھی چاہتا ہوں کہ چند منٹ اسی سے متعلق گفتگو کروں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنا۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، مثلا کوئی دانہ ہے اور اس میں کچھ کنکر ہے، کچھ مٹی ہے، کچھ پتھر ہے، کچھ گندگی ہے، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، اس سب کو صاف کر دینے کے بعد جب پیور دانہ بچے، گیہوں بچے، چاول بچے، تو اس کو کہتے ہیں مزکا، یعنی زکوٰۃ نکالا ہوا۔ تو جب گندگی نکال دی جاتی ہے، میل نکال دیا جاتا ہے، ناپاکی نکال دی جاتی ہے، تو جو مال بچتا ہے وہ مزکا ہوتا ہے، پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال اللہ تعالی کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور جو نہیں نکالا جاتا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اس مال کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال کا پتھر بنایا جائے گا، یعنی جیسے یہ لوہا ہے، اس کو پیٹ کر کے اس کو چوڑا بنا دیا، وہ پتھر ہو گیا، تو اس کا پتھر بنایا جائے گا، پھر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جب وہ جہنم کی آگ میں سرخ ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، سونے کی طرح چمکنے لگے گا، تو پھر جہنم کی آگ میں رکھ کر کے اس کو دھونکی دیا جائے گا، بار بار اس کو پھونکا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور جب سیاہ ہو جائے گا تو جس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے اسی سے اس کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اسی لوہے سے، اسی پتھر سے داغا جائے گا جو جہنم کے اندر سرخ کیا گیا ہے، لال کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ حصہ سے تو یہ کام ہوگا اور دوسرے حصے سے بڑے بڑے گنجے اژدہے سانپ بنائے جائیں گے۔ گنجا سانپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ پھونک دے تو ہری بھری گھاس جل کر راکھ ہو جائے، اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گنجا سانپ بنایا جائے گا، ایک طرف تو اس کو داغا جا رہا ہوگا اور دوسری طرف وہ سانپ اس کو ڈس رہا ہوگا، اس کو کاٹ رہا ہوگا،
और ये कितनी देर तक होगा? जब तक के अहले महशर का हिसाब हो नहीं जाएगा, उस वक्त तक के उसके साथ यही व्यवहार होगा, यही किया जाएगा। और अहले महशर का हिसाब वो कितने दिन में होगा? तो उस दिन का जो हिसाब लगाया गया है वो 50,000 साल का एक दिन होगा। यौम महशर जो है, जिस दिन हिसाब होगा, वो 50,000 साल का एक दिन होगा। और उस एक दिन में उस ज़कात न देने वाले को दिन भर वो सांप काटता रहेगा और दिन भर उसको दागा जाता रहेगा। अब उसके बाद उसका हिसाब होगा, चाहे जहन्नम में जाए चाहे जन्नत में जाए, हिसाब बाद में होगा। ये उससे पहले हो गया। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़कात किस चीज पर है, किस माल पर है? मकान पर ज़कात नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए का आपका मकान है जिसमें आप रहते हैं, उस पर ज़कात नहीं है। सामान आपके पास है, हीरे आपके पास हैं, आपने अंगूठियों में लगा रखा है, बटन में लगा रखा है, अपने घर को सजा रखा है, चाहे वो अरबों अरब मिलियार्ड का अगर वो हीरा है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। घर के जो सामान है जिसको आप बरतते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको काम में लाते हैं, खाना पकाने का सामान है, सोने का सामान है, दूसरे और डेकोरेशन के सामान है, लेकिन डेकोरेशन का वो सामान जो जरूरत में नहीं है उस पे ज़कात है। और जो जरूरत में है, जैसे पढ़ने वालों के लिए हजारों हजार रुपए की किताब अगर वो पढ़ता है, उसकी ज़कात नहीं है। उससे मसाइल लिखता है, उसकी ज़कात नहीं है। घर के अंदर जो सामान इस्तेमाल करने के हैं, बर्तन है, पकाने के सामान है, खाने के सामान है, पहनने के सामान है, ओढ़ने के सामान है, सोने के सामान है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। यहां तक कि जिस गाड़ी में आप चलते हैं, जिस गाड़ी को आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी ज़कात नहीं है, इसलिए कि वो इस्तेमाल की चीज है। तो जो इस्तेमाल की चीज है उस पर ज़कात नहीं, और जो इस्तेमाल की नहीं है या जिसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, उस पर ज़कात है। अब आप कहेंगे कि साहब टीवी पर है कि नहीं? उस पर भी है। शरीयत के एतबार से उसका रखना जरूरी नहीं है। बहुत सारी मशीनें जो हमारे घरों में होती हैं, उसका रखना ज़रूर शरा जरूरी नहीं है, लेकिन हम रखते हैं सजाने के लिए, सुनने के लिए। कभी कभी उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूरी नहीं है, इसलिए उस पर ज़कात होगी। उस पर भी ज़कात होगी, उसका पैसा जोड़ा जाएगा। ज़कात किस माल पर है? तिजारत के माल पर। आप कोई दुकानदारी करते हैं, उसमें आपने 10,000 20,000 लगा रखा है। साल जब खत्म होगा तो जितना आपने लगाया वो और जितना मुनाफा उसमें हुआ है, वो सारे माल पर ज़कात है। तिजारत के माल पर ज़कात है। सोने और चांदी पर ज़कात है। वह जानवर जिसको लोग जंगलों में छोड़ देते हैं, उस पर ज़कात है। हालांकि यहां तो उस चीज की जरूरत नहीं है कि हम उसको बयान करें। यहां जरूरत इस बात की है कि चांदी और सोने पर ज़कात है। और अगर चांदी और सोना नहीं है तो इतना रुपया जिससे उतनी चांदी उतना सोना खरीदा जा सके, जिससे निसाब बनता है, तो उस पर भी ज़कात है। थोड़ा सा उसका हम खुलासा कर दें कि अगर किसी मुसलमान के पास, चाहे औरत के पास चाहे मर्द के पास, जेवरात हैं, सोने के सामान हैं, या सोने की बिस्किट हम रखे हुए हैं अपने घरों में, और उस पर साल गुजर गया है
और उस सोने के बिस्किट का वजन 80 और 7 87 सैफनिन ताख्तख ग्राम है, तो उसके ऊपर ज़कात होगी। साल अगर उस पर गुजर गया तो उस पर ज़कात होगी। कितनी ज़कात होगी बाद में हम बताएंगे। उस पर ज़कात होगी। अगर सोना नहीं है और चांदी के आप मालिक हैं, सिल्फर अगर आपके घरों में है और उसका वजन 612 ग्राम है, तो आप साहिबे निसाब हैं, उसके ऊपर भी ज़कात है। कितनी ज़कात है तफसील बाद में। और अगर चांदी या सोना नहीं है लेकिन इतना रुपया है कि जिससे आप 87 ग्राम सोना खरीद सकते हैं, उतने रुपए के आप मालिक हैं और उतना रुपया कर्ज से खाली है, तो आपके ऊपर ज़कात है, उसके ऊपर ज़कात है। अब अगर जैसे आज का जो भाव है, आज सोने का भाव था 10 यूरो 15 यूरो सेंट में 1 ग्राम, तो अब 87 और कुछ पॉइंट की कीमत हो जाती है 885 यूरो। तो 885 यूरो का जो मालिक है, इतना पैसे का जो मालिक है, और उस पैसे पर साल गुजर गया है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और जिसके पास इतना माल है वो ज़कात नहीं ले सकता है, दूसरे से ज़कात नहीं ले सकता, खुद उसको ज़कात देनी, खुद उसको ज़कात निकालनी। दूसरे की ज़कात अगर वो लेगा और या दूसरा आदमी उसको ज़कात देगा तो ज़कात अदा ही नहीं होगी। ये सब मसाइल हमारी किताबों के अंदर तफसील के साथ लिखे हुए हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम इन मसाइल को सीखने की कोशिश करें, इन मसाइल को जानें, इसलिए कि अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि हम सही तरीके से अदा न करें। कोई जगह खराब है, लेकिन अगर वो जगह हमको मालूम नहीं है कि खराब जगह कहां है, तो हो सकता है कि हम उधर से गुजर जाएं। इसलिए जरूरी है कि जो खराब जगह है उसकी मालूमात हम पहले करें, जो अच्छी जगह है उसकी मालूमात पहले करें, ताकि हम वहां जा सकें और जो बुरी जगह है वहां से अपने आप को रोक सकें। तो मसाइल का सीखना, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई से बचने के लिए हो, ये हमारे लिए जरूरी है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इस मस्जिद में तकरीबन 15-16 साल पहले जब मैं यहां मुस्तकिल रहता था, तो हाजी फारूक मरहूम के इसरार पर और भाई अब्दुल लतीफ यूसुफ, हाजी यूसुफ गुमान, इनके ताउन से एक फेहरिस्त हम लोगों ने तरतीब दी थी, एक चार्ट हम लोगों ने बनाया था। इसलिए कि उस वक्त दुश्वारी बहुत थी कि अगर किसी के पास 100 ग्राम सोना है तो ज़कात कितनी निकलेगी, 200 ग्राम सोना है तो ज़कात कितनी निकलेगी। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं था कि 87 ग्राम और 100 ग्राम के बीच में अगर है तब कितना निकलेगा। तो इन सब दुश्वारियों को सामने रखते हुए एक फेहरिस्त हम लोगों ने तरतीब दी थी। उस फेहरिस्त को आप हासिल कीजिए, घर घर में उसको रखिए और उसको देखकर बहुत आसानी के साथ अपनी ज़कात आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहला आइटम लिखा है, पहला नंबर लिखा है 8737। 8737 का मतलब हुआ कि 87 ग्राम 37 पॉइंट अगर किसी के पास सोना है तो अब उसकी ज़कात 2 ग्राम 18 पॉइंट ज़कात निकलेगी। 2 ग्राम 18 पॉइंट। अब 87 के बाद सीधे इसमें आया है 104। अब 87 के बाद से लेकर 103 तक का जिक्र नहीं है, 87 के बाद है 104।
تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیچ کا کیوں نہیں آپ نے لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کہ شریعت نے 87 کے بعد اور 4 سے پہلے جو وزن ہے سونے کا اس پر زکات ہم کو معاف کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا. اب جو لکھا گیا ہے اسی کی زکات دی جائے گی. اب اس کے اندر، اس فہرست کے اندر تقریباً 1 کلو سونا تک کی زکات نکالی ہوئی ہے اور 1 کلو سلفر کی بھی زکات نکالی ہوئی ہے. تو اس کو آپ لوگ رکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، مسائل دینیاں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ اس میں گھنٹہ بھر لگائیں گے تو 1 گھنٹہ عبادت کرنے سے زیادہ ثواب اس میں آپ کو ملے گا، زیادہ آپ کو اس کا پھل ملے گا، اس لیے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں. تو دین کا سیکھنا یہ زیادہ اہم ہے شریعت اسلامیہ کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بی بی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول